Now new student is here, मीनाक्षी. मीनाक्षी जी, आपने आज ज्वाइन किया है, पहली क्लास है आपकी. क्या करते हैं आप? आप माइक ऑन कर लीजिए अपना. Good evening, ma'am. Saturday class I attended, ma'am. This is the second class. Okay, this is your second class. Okay. Yes, ma'am. So yesterday, what have you understood? What points? Can you tell me 2 points? Any 2 points? What which you understood yesterday? Any 2 points? To guide the patient, yes, we must know the patient's health history. On basing that, if the patient having some pain or something else, that may not be the reason what we are showing out. Maybe the inner reason some other. So we have to check the patient's complete medical history. After that, we have to guide them. Yes. After that, we can diagnose what is the problem. Yes, ma'am. Diagnosis will be based on his blood reports, his or her blood reports, and his complaints. Okay, ma'am. So when we make diet plans, diet charts, there we have to write their complaints with their parameters, which is not in good range. It is in abnormal ranges. We have to write, like you can see like doctor's prescription. You can notice that there they write care of. As it is, we have to write care of their complaint, weight loss or anything, diabetes, T2DM and insulin dependent, anything. And secondary, you have to write in one slash column, in make column, we have to write their parameters, which is not in balance, which are in imbalance ranges, we have to write there. I'll show you in last, later classes, I'll show my prescriptions. Sure, ma'am. Mrs. सीमा वर्मा, what are you? आप क्या कर रहे हैं अभी? क्या करते हैं? सीमा वर्मा जी, आपके बारे में बताइए, थोड़ा स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे तो समझ में आएगा. माइक ऑन कर लीजिए अपना. आपने क्या पढ़ाई की है, थोड़ा बताइए. क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं, क्या है, थोड़ा बताइए मुझे. मैंने एमए योगा किया हुआ है और मैंने डाइटिशियन का कोर्स भी कर रखा है और इसके अलावा मैंने DNYS किया हुआ है. अच्छा, डाइटिशियन का कोर्स कहाँ से आपने किया है? क्या किया है इसमें? ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है? नहीं, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है. अच्छा, कॉलेज जाके किया है या ऑनलाइन किया है? ऑनलाइन किया हुआ है. अच्छा, ओके. तो ऑनलाइन में प्रॉपर क्लासेस आपकी होती थी, डाउट क्लियरेंस सब होता था. अब बैलेंस डाइट प्रॉपर क्लास मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आई. हाँ, थोड़ा माइक इश्यू हो रहा है, आई थिंक. अभी आ रही है आवाज? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? यस मैम. कट के आ रही है. आपके लिए सीमा वर्मा मैम, आपके लिए शायद थोड़ा इश्यू हो रहा है. कट के आ रही है मैम, बीच में वो जा रही है. हाँ, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए कट के आ रही है. ओके. Dr. Jayesh, I think you are a new student today. Yes, ma'am. This is the first seminar because our sir, Devnath sir, has told me to join and get good advantage in this also for my patient. Basically, I'm from Mumbai. I'm having a good setup of chiro with massage and with DYDNS. Myself with DYDNS from Mumbai. And I done a lot of courses offline in Australia, Philippines regarding chiro, massage and food diets. Okay, very nice. Because I was abroad around 25 years from India and born and brought up overseas. Born and brought up at? Overseas. I was born and brought up in overseas. So
lot of Okay. colleges I was interact and I learned something which is not in India. And around monthly 150 patients, I'm getting good result. But 100% charity basis, we are on the clinic. We are not charging anything. But Nice. first thing, we are having strict on food diet, water therapy, then acupunctures, and then Cairo, then massage. So 100% we are getting good results out of no, not a single patient. Last 5 years, I'm get the bad result. This is the history of that Mumbai. And morning by 6 o'clock, around 10-15 people, because clinic open morning 7 to 10, and 7 o'clock Your clinic is at where? Mumbai, right? Mumbai, Twice. Okay. center of Mumbai. That is called Lalbagh, and around 7 o'clock, 20 people are standing outside the clinic, same as a local OPD, where we are. It is difficult to enter the clinic also. But after that, we'll take the 10 by 10, first come, first services. And It's hard to hear you. I'm very difficult to hear you. I think you have to increase your volume. you want to increase my volume? You Now, have to increase your volume. I think I'm not able to hear you properly. Sorry for that. no, I'm basically from Mumbai and having chiropractor services with the acupunctures, with the massage, with the food diet, water therapy, and other lot of Very nice. therapies we use with the patients, and where we are getting good result with Very Ayurveda. Three dosas we are using, and still a day, hardly one or two patient in last 10 years. I not completed that patient. Remaining, not a single patient have any bad words on that. Without any advertisement, around monthly 150 to 100 patients are there, and we are taking on charity basis, not pay basis. Because in around the world, in the US, we are charging $80 per sitting of 20 minutes. In India, for 3,000 to 4,001 Cairo. In Mumbai, that is Mumbai rate. I don't know what is the Delhi and other rates. But in Mumbai, one Cairo, if we are giving, its minimum cost is 1,500 to 2,000, which is patient getting free. Any patient can come, but our strict law is that if you are mostly we diet therapy. So, what kind of patient you are having? Like, I'm having joint pain patients, sciatica patients, cervical spondylosis patients, fractures, then joints pain, and some liver problems. Sometimes it have cough, a lot of cough patients. Sometimes they are having okay. different because it is So, clinic. So so they, 20. they may need monthly basis or weekly basis sittings, right? I'm attending only weeks of one. I'm not attending daily basis. Daily basis they can call me and get their all the services by phone. Very nice. Very nice. Nice man. So you must studied about physiology, anatomy, right? Yes, ma'am. That is by DYDNS person must be know that. Otherwise, he can't do anything in DYDNS also. And I Okay. appeared by first class last year only from Mumbai. Mumbai Mhm. College, DY Patil Medical College. Okay. Okay, fine. So today we can start some any topic. Okay. I think most students will only. How many students are there? Sir, कितने student है देवनाथ sir? 5, ma'am. Why is that? तो हो गए sir अभी. हाँ जी. 6 अभी members. कितनों ने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे? 6 members. ओके. ओके 15 मिनट्स हो चुके हैं. हम स्टार्ट करेंगे अभी. कल से भी हम 10 मिनट्स थोड़ा डिस्कस करके फिर स्टार्ट करेंगे. लेट करने से बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है. ओके. थोड़ा बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड फर्स्ट एनर्जी. बैलेंस डाइट में कितनी चीज़ें होती हैं, कितने न्यूट्रिशन होते हैं? तो बैलेंस डाइट में 5 चीज़ें होती हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स.
इसमें जो 3 फर्स्ट हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है एंड विटामिन एंड मिनरल्स एनर्जी देने का काम नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट 3 जो है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड है, इसका काम सिर्फ एनर्जी देना है। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अभी मैं बात कर रही हूँ, मुझे इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मैं सो जाऊंगी रात को, उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। जब मैं बाहर वॉक करूंगी उसके लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन डिफरेंट कैलोरीज चाहिए होती है, लाइक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें डिफरेंट काम करने में लगती है। इवन जब हम सोए रहते हैं तभी भी हमारी बॉडी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर रही है। ओके, सेकेंड थिंग, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है, हम जब सोते हैं तब हमारे सेल्स को ज़्यादा रिपेयर करते हैं, इससे रात में प्रोटीन खाना बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, प्रोटीन्स जो भी हीलिंग होता है, घाव होते हैं, चोट लगती है, सेल्स बनाने का काम करता है। डॉक्टर जय जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। नंबर 3, फैट। फैट क्या करता है? हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ स्टोर्ड रहता है एंड हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, हमारे हीट को रेजिस्ट, लाइक अगर हमें गर्मी लगती है तो एक फैट की जो लेयर होती है हमें उससे प्रोटेक्ट करती है, लाइक इंसुलेटर का काम करती है। हमें गर्मी लगने से, तुरंत ठंडी लगने से जो फैट की लेयर है वो बचाती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नंबर 4 इज विटामिन। विटामिन क्या करता है? हमें बीमारी से लड़ने के लिए बचाता है। कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो हमें विटामिन ज़रूरत लगती है, और अगर विटामिन बॉडी में नहीं होगा, डिफिशियंसी होगी, तो हमें इन्फेक्शन होगा और भी बहुत तरह की बीमारियां हैं। बेरी है, स्कर्वी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम नेक्स्ट क्लास से अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर 4 इज, व्हाट इज नंबर 5? कैन एनीबडी टेल मी? 5वां नंबर मैंने क्या बोला? एम से है वो, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स में आता है। ये किस लिए चाहिए? हमारे बोन्स को बनाने में, हमारे टीथ को बनाने में, हमारा ब्लड में कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा, उसको बनाने में। कहते खून की कमी हो गई, खून की कमी नहीं होती, एक्चुअली इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसमें आयरन लगता है। ठीक है, तो जो 5th है व्हाट इज मिनरल। तो 5 चीजें क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि बैलेंस डाइट में क्या आता है? ये 5 चीजें। उसके साथ में 2 चीजें और सपोर्टिंग है, वो है वाटर एंड रफेज। रफेज भी चाहिए। रफेज कुछ काम नहीं करता, कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, वो जस्ट एक बल्क देता है, एक मास देता है। हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको जो पास कराते हैं, स्टूल बनता है, पॉटी होती है, उसको निकालने में, रफेज क्लीनिंग करने में रफेज काम आता है। तो रफेज भी उतना इम्पोर्टेंट है एंड वाटर भी उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आपसे कोई 5 न्यूट्रिएंट बोला जाए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड वाटर। 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं। ओके, एंड इसके फिर टाइप्स हैं, इसमें भी बहुत टाइप्स है, उतना डीप से अब अभी नहीं जाएंगे। एंड बैलेंस डाइट क्या करता है? किसी बॉडी को हेल्दी रखता है, किसी भी बीमारी। बैलेंस डाइट खाने से फायदा क्या होगा? बेनिफिट ऑफ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग बैलेंस डाइट? यू विल बी हेल्दी, यू विल नॉट बी ओबेस। या तो कोई मोटा नहीं होगा या तो कोई पतला नहीं होगा। अगर कोई मोटा है तो वो भी माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड एक टर्म है जिसमें कि कहा जाता है उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। व्हाट इज द टर्म? माल नरिश्ड। नरिश मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, माल नरिश्ड मतलब, माल मतलब खराब। इसमें 2 वर्ड से बना है माल नरिश्ड। माल मतलब खराब, नरिश मतलब न्यूट्रिएंट, उसका जो नरिशमेंट है वो खराब है। तो माल न्यूट्रिशन अगर होगा, किसी का जो खराब खाना खा रहा है, जो सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है,
तो उसमें ओबेसिटी वाला पर्सन भी आएगा जो ज्यादा मोटा है, उसमें पतले इंसान भी आएंगे जो ज्यादा पतले हैं, दोनों ही मालनरिश कंडीशन में आएंगे। ओके, अभी जो न्यूट्रिएंट है, ये जो 5 न्यूट्रिएंट मैंने बोले, कोई एक रिपीट कर सकते हैं? रेज हैंड करिए। 5 न्यूट्रिएंट अभी बोलते जाएंगे, आपको एग्जाम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद होता जाएगा। रेज हैंड करिए। संतोष जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बताइए, आप बता पाएंगे? 3 तो बता पाएंगे। अनम्यूट करिए और बताइए मुझे। 5 न्यूट्रिएंट्स, 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। carbohydrates, protein, and minerals, and प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, जो आप बोलने में एनर्जी खर्च कर रहे हैं उसके लिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, ये 5 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब इन 5 न्यूट्रिएंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये 5 न्यूट्रिएंट हैं जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, मैक्रो मतलब पता है किसी को? ज्यादा। मैक्रो मतलब ज्यादा। ओके, माइक्रो मतलब थोड़ा। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा लगते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, ग्राम्स में लगता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में लगते हैं, जो माइक्रोग्राम्स में लगते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है वो। ओके, तो मैक्रो में आएंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नोट डाउन कर लीजिए आप। मैम रिपीट करेंगे? बिल्कुल। देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, आप थोड़ा नोट्स बना लीजिए। हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर? देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स। ओके, नंबर 1 प्रोटीन। कोशिश करिए हमेशा आंसर्स आप कहीं भी लिखें तो पॉइंट्स में लिखें, 1 2 3 करके ऐसे। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट। ओके, देन नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स। हमेशा विटामिन मिनरल्स को लास्ट में लिखिए, ये अलग रखिए थोड़ा, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कम लगते हैं। अभी there are 2 types. How many types of nutrient? There are 2 types of nutrient, macronutrient and micronutrients. What are micronutrients? Name them. इसका आंसर होगा प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। And what are micronutrients? MICRO. Micronutrients are vitamins and minerals. Okay. और भी इसका डीप है लेकिन उतना जाएंगे नहीं क्योंकि इसे डिप्लोमा एंड डिफरेंट कोर्स है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, इनके फंक्शंस क्या है। ओके, तो नंबर 1 क्या था हमारा? नंबर 1 में लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट। ओके, Function of carbohydrate are number 1. कार्बोहाइड्रेट। Function of carbohydrate, it gives energy to our body. For doing
वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस, कुछ भी काम करने के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि दिल धड़कना, हार्ट बीट्स, दीज आर इनवॉलेंट्री, हम नहीं कर रहे उसको, फिर भी वो हो रहा है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए, हार्ट बीट हो रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। It gives energy for voluntary and involuntary functions of our body. Number 2, protein. Protein protein repairs our cell. मैं repeat कर रही हूँ. The function of protein is maintenance of cell body. मैम फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार. हाँ जी. प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करना. Number 3 is fat. Fat protects our body from injury, heat, and it gives it plays a role of insulator of the body. क्या करता है insulator? It plays the role of insulator of our body. गर्मी सर्दी से बचाता है. आप देखेंगे जो बहुत पतले होते हैं, बहुत स्किनी होते हैं, उनको सर्दी भी जल्दी लगती है, उनको गर्मी भी जल्दी लगती है. ओके. नंबर 5 is vitamins. टू पॉइंट्स हुए मैम, तो ये थर्ड हुआ ना अभी. प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मैंने कर दिया. कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अब नेक्स्ट है फैट भी बोला मैंने, इंसुलेटर का जो मैंने बोला हीट. ओके. नंबर 4 इज विटामिन. Vitamins protects our body from infection. Next is minerals. Number 5. Minerals maintain bone and teeth health. रिपीट कर देंगे मैम लास्ट. Yeah, sure. Minerals maintains bone and teeth health.
मैं रफली अभी लिखवा रही हूँ बिकॉज अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉपरली नोट्स करेंगे। अभी आप रफली अब समझने के लिए बेसिक के लिए इसको थोड़ा पढ़िए। ओके, ए मीनाक्षी आपने रेज हैंड किया है? What, ma'am? कुछ क्वेरी है आपके? आपने रेज हैंड किया है? हैव यू एनी क्वेरी? Oh, sorry, ma'am. I did. Sorry. I don't. By mistake it touched. ओके, तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, ग्राम्स में लगते हैं। माइक्रो इसीलिए क्योंकि ये कम अमाउंट में लगते हैं, माइक्रोग्राम में लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इनके रोल पढ़े, हमने इनके फंक्शन पढ़े। अभी हम दो जो हमारे सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, दैट इज वाटर एंड रफेज, उनका रोल पढ़ते हैं। Function of water is it regulates blood volume, it regulates, number 2, it regulates body temperature, सारे स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आई होप नेक्स्ट क्लास में सब ऑन कर पाएंगे। नंबर 3 हम वाटर कर रहे थे, राइट? फर्स्ट इज ये ब्लड वॉल्यूम बनाता है। कितना ब्लड होता है किसी बॉडी में, एडल्ट में? 5 लीटर्स। ओके, नंबर 2 हमने बोला टेम्परेचर रेगुलेट करता है। किसी को भी जब फीवर होता है हमें पानी ज्यादा पिलाना है जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर, जो वाटर है वो एक तरह से फीवर की मेडिसिन है। ओके, जब भी फीवर हल्का भी बढ़े तो हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना है जो नेचुरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करे। डेंगू में कितना पानी पीना होता है? बॉडी वेट के हिसाब से पानी पीना होता है उसमें। ठीक है, तो डेंगू का यही ट्रीटमेंट है कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं। एक 20 साल के बच्चे, 20 केजी के बच्चे का भी वाटर इनटेक होना चाहिए 4 to 5 kg। अगर आप वाटर इनटेक अच्छे से कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वाटर एंड डोलो देने से होगा, उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगेगा, उसको आप घर पे आराम से मेंटेन कर सकते हैं, उसको कोई वीकनेस नहीं होगा। डेंगू में फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है। अभी गर्मी बढ़ रही है तो डेंगू के चांसेस बढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए जैसे ही फीवर होने लगे बच्चे को, आपको लग रहा है तो फटाफट उसका वाटर इनटेक बहुत बढ़ा दीजिए। अगर वाटर वो नहीं पीना चाह रहा, मतलब आलस कर रहा है बच्चा, तो यू हैव टू गिव अदर फ्लूइड लाइक डाब वाटर दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, जो उसको पसंद है, लेकिन लिक्विड कंटेंट मेजरमेंट करके दीजिए, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर। ठीक है, अगर नहीं करते हम घर में तो इसीलिए क्या करते हैं, डॉक्टर्स एडमिट कर देते हैं, उनको स्लाइन चढ़ा देते हैं, वेन से चढ़ा देते हैं ना, तो इसीलिए कोशिश करना ओरली अगर देंगे तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिए जब भी नॉर्मल फीवर भी हो तो उस टाइम मैक्सिमम वाटर इनटेक देने का कोशिश करिए। नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है 2.5 लीटर जब एडल्ट की बात कर रही हूँ मैं, एंड जब फीवर होता है तो उसमें 1 लीटर ऐड ऑन करना पड़ेगा। युवा वाटर का रोल नंबर that is 7, रफेज। रफेज का क्या रोल है? It helps to excrete waste from our body. जस्ट एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बॉडी से निकालने के लिए, जिसको हम फीसेस बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, पॉटी बोलते हैं, तो इसको बॉडी से निकालने के लिए हमें चाहिए रफेज। अगर हम रफेज नहीं खाएंगे तो वो जो वेस्ट है वो किसके साथ मिल के बाहर निकलेगा, कुछ तो चाहिए उसको बल्क बनाने के लिए, तो वहां पे आता है रफेज। Roughage helps to excrete waste from our body.
रफेज भी दो तरह के होते हैं, वो आप मत लिखिए अभी, जस्ट सुनिए। रफेज भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉल्यूबल रफेज, एक होता है इनसॉल्यूबल रफेज, ठीक है। तो हमें जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें सॉल्यूबल रफेज ज़्यादा लेने होते हैं, जैसे कि बनाना में होता है, ठीक है। तो कोशिश करना जब भी कॉन्स्टिपेशन हो तो बनाना खाए पेशेंट, एप्पल खाए, कुक्ड एप्पल देना है जब भी इसको कॉन्स्टिपेशन हो, इसको एप्पल्स दें। आप रफेज इंक्रीज करेंगे तो उसका एक्सक्रीशन इजीली होगा और वो अपने कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अभी थोड़ा क्वेरीज करिए, कुछ क्वेरीज है किसी को? हमने बहुत कुछ पढ़ा अभी, हम इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे कितने न्यूट्रिएंट हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लगते हैं? 5। Yes, very good. And yes, and 2 टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से? इनको जो 5 है इनको हम 2 टाइप में डिवाइड, मैक्रो एंड माइक्रो। वेरी गुड, ठीक है। अभी वो जो मैक्रो का कौन बताएगा, मैक्रो में कौन कौन आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? रेज हैंड करिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? संतोष जी बोलिए। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई और बताएगा? सारे विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, करेक्ट। क्यों ये माइक्रो में गिने जाते हैं डॉक्टर जयेश? वेरी फ्यू, काफी कम मात्रा में इसे लिया जाता है और उसको देने के लिए भी बहुत सारे वॉइस नॉट क्लियर सर। उनके रिपोर्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं और उनकी जांच के ऊपर से, पेशेंट की कंप्लेंट के ऊपर से उसका नक्की किया जाएगा कि भाई क्या देना है क्या नहीं देना है। No, that is not reason for they called micronutrients, because they are required in less amount. That is only reason, because they are required in very less amount. The unit of requirements are, Dr. Jayesh, unit क्या होगी इसके लिए? किसमें हम लेंगे उसको, ग्राम्स में किसमें लेंगे? वेरी फ्यू, 1 ग्राम से भी नीचे आता है, point some 0.01। That is micronutrient, so microgram में लगेगा। हाँ, माइक्रोग्राम में रहेगा। Yes. Okay. Okay. आप लोग में से मेरी एज कौन बता पाएगा? मेरी एज गेस करिए। 5 इयर्स का एज गैप ड्यूरेशन बोल सकते हैं आप। हाँ बताइए। 40 के नियर होगी मैम। 40 नियर, ओके। नेक्स्ट, अराउंड 40। 40 प्लस और 40 माइनस? अराउंड 30 to 35। आसपास ही है। सॉरी, अराउंड 32 to 35। ओके ओके। और भी इंटरेस्टेड नहीं है? आई एम 41। संतोष जी बहुत नियर बाय है, ठीक है। तो हम अच्छी डाइट खा के अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने डिजीज फ्री रह सकते हैं। दैट्स आई एम टेल यू माय एज कि मैं इस एज के साथ डिजीज फ्री हूँ। एंड आपने बहुत अच्छा गेस किया, जनरली लोग नहीं कर पाते। 40 जनरली मुझे नहीं बोलते सामने वाले पेशेंट्स या कोई भी। ओके, नहीं आप मतलब लगते नहीं हो, बट वो होता है ना कि एक ऑरा होता है, वो एज को तो नहीं बता सकता है। Okay. लेकिन हम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो जाता है। पता नहीं।
तो हम थोड़ा फिजियोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रफली आज, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। डाइजेशन में कहाँ से बॉडी का पार्ट स्टार्ट होता है, कहाँ से हम डाइजेशन के बॉडी पार्ट को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पार्ट कौन सा है डाइजेशन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में? दैट इज माउथ, ठीक है। हम यहाँ से खाते हैं, माउथ दैट इज फर्स्ट पार्ट। यहाँ से ऐसे खाया, ऐसे यहाँ से होता है हमारा फूड पाइप, ठीक है, इसोफेगस भी बोलते हैं इसको, यहाँ या इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस में यहाँ से इस तरह से होते हुए, ऐसे होते हुए, प्रेस होते हुए गया ये स्टमक में। स्टमक होता है हमारा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट में हमारा स्टमक होता है, यहाँ पे खाना ऐसे चर्न होता है बहुत देर तक, ऐसे 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 स्टमक एक बलून की तरह है जिसमें ऐसे खाना ऐसे ऐसे चर्न होते रहता है। स्टमक प्रेस होता है, रिलीज होता है, प्रेस होता है, रिलीज होता है, आराम से उसको चर्निंग करता रहता है। इस टाइम में फूड जो है वो काइन कहलाता है, CHYN, ठीक है, वो काइन कहलाता है। वो एक पेट में HCl जब सीक्रीट होता है, पेट के अंदर क्या सीक्रीट होता है, HCl, ठीक है, उसके साथ खाना मिलके काइन बन जाते हैं, बॉल की तरह बन जाता है, ठीक है, उसमें ऐसा चर्निंग होता है। उसके बाद आगे जाता है डिओडिनम से पास होते हुए, जेजुनम से पास होते हुए, वो पार्ट है डिओडिनम जेजुनम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बाद में डायग्राम के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, रफली एक बार रिवाइज करिए, आपने बचपन में या कभी पढ़ा होते हैं। डिओडिनम जेजुनम, देन आता है आपका इलियम। इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाना सिर्फ वेस्ट जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो भी हमने खाया उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड क्या होता है, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है और बाकी का सारा सिर्फ वेस्ट बचा है। और उसके बाद वो फीसेस हमारा रेक्टम से बाहर निकल जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद एनएस लास्ट पार्ट होता है जो बाहर निकल जाता है। आप लोग को पीडीएफ मिला है क्या, नोट्स की पीडीएफ है? यस मैम, मिला तो है, बट इसमें उसमें डायग्राम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक बार उसको देखिएगा, ठीक है। एंड कोशिश करिएगा बनाने का, आपको बहुत हेल्प करेगा उसको लेबलिंग करने का। अगर बना नहीं पाए तो कम से कम लेबलिंग कर देगा, उसको आपको पार्ट्स याद होंगे। एंड हर जगह में सिक्रीशन, जैसे पास मैंने बताया खाना कहाँ, उसके बाद कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद हर जगह थोड़ा थोड़ा डाइजेशन भी होता है। माउथ में क्या निकलता है, माउथ में सलाइवा निकलता है, लार जो हम लोग बोलते हैं ना, लार निकलता है, उसमें खाना मिक्स होता है। जब हम चबाते हैं तो हमारी टंग उसमें हेल्प करती है, हमारा टीथ उसको च्यू करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है फर्स्ट, ठीक है। टंग क्या करता है, उसको जो हमारा सलाइवा निकल रहा है उसके साथ मिक्स करता है खाने को, कि वो अच्छे से आपस में सलाइवा और खाना मिक्स हो जाए। अब वो मिक्स होगा तो क्या होगा, मिक्स होने से उसमें जो भी स्टार्च है वो डाइजेस्ट होगा। यहीं पे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सलाइवा के साथ खाना मिक्स होके स्टार्च जो है उसका वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो चावल खाते हैं, जब चबाने के बाद थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि वहीं पे डाइजेस्ट होता है। 90% आपका माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, सिर्फ स्टार्च पार्ट जो कि आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसका एक पार्ट है स्टार्च, तो वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ, खाने का स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कुछ नहीं हुआ। हमने प्रोटीन भी खाया, फैट भी खाया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा का वैसा नीचे जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा इसोफेगस से या फिर फूड पाइप से कह सकते हैं, खाना नीचे जाएगा स्टमक में, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ खाना पास होता है, ओके।
उसके बाद जाता है हमारा स्टमक में। स्टमक में क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड हो गया लोग बोलते हैं ना, तो एक एसिड पेट में निकलता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। वो डाइजेशन का काम करता है, वो नहीं निकलेगा तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो HCl निकलता है, उसको खाना को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, गलाता है, ठीक है। और एक और चीज, अगर HCl आपने सुना होगा ना, जो हम टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं उसमें भी HCl होता है। तो पेट में क्वेश्चन है, पेट को क्यों नहीं जलाता है खाना? अगर हम हाथ में HCl डालेंगे हाथ तो जल जाएगा, लेकिन पेट के अंदर HCl है, पेट क्यों नहीं जल रहा है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस। पेट की आई थिंक आंत जो होती है मैम, वो ऑलरेडी इतनी सख्त होती है अंदर से, नहीं कि उसके अंदर तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है, वो एसिड क्या जला पाएगा? नहीं, अगर आप पेट को अलग से बाहर निकालेंगे और उसमें एसिड डालेंगे वो जलेगा। स्किन तो वैसे ही होती है, जैसा हमारा हाथ है वैसे ही होता है। उसमें कोटिंग होती है अंदर की ओर, जिसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकस होता है उसके अंदर। जैसे माउथ में लार होता है ना, वैसे ही स्टमक के अंदर म्यूकस होता है, ठीक है। एक लिक्विडी लेयर होती है, बहुत ही स्टिकी। तो वो पेट तक उसको पहुंचने ही नहीं देता है। लाइक जो पेट की जो लाइनिंग है, अगर ये मेरा पेट है, इसके ऊपर यहाँ पे लेयर है, तो इस तक स्किन तक, उसकी जो स्टमक की स्किन है वहां तक वो पहुंचता ही नहीं है। वो सिर्फ म्यूकस, वो अंदर में सीक्रेट होता है डायरेक्टली स्टमक के अंदर, और खाने में खाली मिक्स हो रहा है, वो स्टमक की लेयर को टच नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज द रीजन। तो पेट में क्या सीक्रेट हो रहा है? HCl, जो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वहां पे डाइजेस्ट हुआ काफी पार्ट, उसके बाद गया डिओडेनम में, जेजुनम में, उसके बाद इलियम में गया, वहां पे खाना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। काफी प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वहां पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। उसके बाद वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, सब कुछ जो अच्छा था बॉडी ने ले लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके पास कुछ नहीं बचा फूड में, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट है वो थोड़ा लिक्विडी है, ठीक है। जैसा हम पॉटी करते हैं ना, वैसा नहीं है अभी, वो थोड़ा लिक्विडी है, ठीक है, सेम सॉलिड जैसा। तो वाटर उसमें ज्यादा है, फिर वाटर वहां से निकाला वापस बॉडी में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या लिया? वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो ले लिया। उसके बाद बच गया क्या? वेस्ट। वो गया स्टोर होने कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम में दिन भर स्टोर रहा, और नेक्स्ट डे हमने जिस टाइम में हमें मॉर्निंग कॉल आती है उस टाइम हमने उसको, दैट इज बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ आती है? अगर हम टाइम पे नहीं खा रहे, तो हमारा HCl तो टाइम पे सीक्रेट हो रहा है, लेकिन हमारा खाना टाइम पे नहीं जा रहा है। अभी हमें कॉन्स्टिपेशन इसी से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों हो रहा है? अभी एक्सक्रीशन के लिए हमको कुछ तो बल्क चाहिए, किसमें वेस्ट मिक्स होकर निकलेगा, तो उसके लिए फाइबर चाहिए। हम फाइबर नहीं खा रहे, सैलेड नहीं खा रहे, सब्जियां नहीं खा रहे, ठीक है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। उसको मोबिलाइज करने का, स्मूथली वो पास हो, उसके लिए हमको वाटर चाहिए। वाटर ठीक से नहीं पी रहे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड डाइजेशन से और रिलेटेड क्या डिजीज है आपका? गैस्ट्राइटिस, गैस फॉर्मेशन होता है। अगर लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो भी क्या होता है? इंटेस्टाइन में एक पेपाइन एक होता है, रेड चिलीज में होता है, एक कंटेंट है रेड चिलीज में पेपाइन, वो जाके लेयर बना देता है स्टमक में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर क्या करता है? बार बार HCl ज्यादा निकालता है पेट, और डाइजेस्ट करना है, ये तो नहीं डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट करना है, नहीं डाइजेस्ट हुआ, क्योंकि वो तो स्टिक हो गया वॉल में, तो बार बार HCl निकाल रहा है। फिर हमें क्या होता है? गैस्ट्राइटिस फील होता है, एसिड ज्यादा बन रहा है पेट में, क्योंकि वो लग रहा है, उसको पता है पेट को कि मेरा तो डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना, मुझे इसको निकालना है वहां से, और वो एक्सेस HCl सिक्रीट किया। फिर हमें एसिडिटी फील होती है, हमें वॉमिटिंग लगती है। ज्यादा सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? अब उसको बाहर निकालना चाहेगी, तो हमें वॉमिटिंग लगेगा। तो इन सब, अगर आप बेसिक
डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सब रीजन समझ में आएंगे कि क्यों हो रही है कौन सी बीमारी। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से क्लास करिए। वर्बली हम बहुत चीजें सीखेंगे क्लास में। नाउ इट इज 7:51। कुछ क्वेरी है किसी स्टूडेंट्स को? ज्यादा फास्ट लग रहा है, कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैम, समझ में भी आ रहा है। थोड़ा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरा थोड़ा वीक है इसमें समझने में, तो मुझे थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, समझ में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। कोई बात हाँ नहीं, जी, बाकी अच्छा समझ में आया आपने जो अभी बताया। धीरे में पढ़ेंगे, पढ़ने से काफी कुछ क्लियर होगा। आप अपनी फैमिली हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। सीमा वर्मा जी, आपने शायद डायटेटिक्स का कोर्स किया हुआ है। आप मुझे कुछ यस मैम। हाँ, कुछ एक दो बीमारी का नाम बताइए जिसमें। मैम मैंने कोर्स किया है बट मेरी क्लासेस नहीं हुई हैं, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। क्लासेस मैंने इसमें जो है क्लासेस उन्होंने ज्यादा नहीं दी थी, पीडीएफ उन्होंने भेजा था, बस उसी से पढ़ के ही पेपर दिए। ओके, बात नहीं। अच्छा, किसी को अगर वेट गेन करना है, ठीक है, तो उसको क्या बढ़ाना चाहिए अपने डाइट में? थोड़ा बता पाएंगे कोई? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर जयेश, आपने क्या बोला? सॉरी मैम, क्या? प्रोटीन एंड कार्ब्स। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप अपना शायद माइक के पास करिए, ऐसा करने से इजी होगा। प्रोटीन एंड कार्ब्स देना पड़ता है। यस, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही चाहिए। ओके, प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन सेल रिपेयर करते हैं, सेल्स को बनाते हैं। कार्ब्स इसीलिए क्योंकि हम अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो अगर हम उतना ही खर्च कर देंगे तो हमारा स्टोर नहीं होगा फिर बॉडी में। न्यू सेल्स बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो हमें दोनों ही इंक्रीज करना होगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड प्रोटीन में एनर्जी देता है, आप लोग को पता है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ही नहीं, तो भी हम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी एनर्जी देता है। लेकिन उसका पहला रोल रिपेयर करने का ही है, उसका जो मेन रोल है उसका सेल्स रिपेयर करना है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू एनर्जी नहीं देंगे तब वो एनर्जी देने का काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो सबसे पहले चाहिए। सेल्स तो नए नहीं बने चलेगा बॉडी को, लेकिन हर काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो उस केस में प्रोटीन क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। तो सेकेंडरी रोल प्रोटीन का क्या है? एनर्जी गिविंग ही है उसका रोल। लेकिन हमको उसको एनर्जी देने के लिए नहीं यूज करना है, हमको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में खाना है ताकि प्रोटीन अपना काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आप मुझे याद दिलाना मैंने क्या बोला था नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए, कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट कितनी कैलोरीज देता है, कितने ग्राम मैक्रोन्यूट्रिएंट कितनी कैलोरीज देता है। That is in next class. There are 3 types of macronutrients. No, we have studied. 3 macronutrients are there. तीनों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है। ठीक है, कैलोरीज एक ऐसा यूनिट है जो हम एनर्जी को काउंट करते हैं। जैसे हम किसी सामान को, किसी वेट को ऐसे उठाने में किलो केजी में नापते हैं, वैसे एनर्जी को नापने के लिए हम किलो कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी कैलोरीज देता है। ओके ओके मैम।
डॉक्टर नीतू ने ज्वाइन किया है, अब क्लास खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिला, ज्वाइन करिए, कोशिश करिए जितना भी टाइम निकाल पाए, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्लास एंड होने जा रही है।